I'd like you to put your hands together for the visionary director, Rakesh Om Prakash Mehra, please. After all his political motivation, youth thrillers, Akhirkar, what makes a filmmaker want to tell a love story? And when you do tell a love story, you know, they'd happened long ago. The first time when we saw the cuties in QSQT, they were fresh faces, you remember that? And there was a reason why we connected with them instantly. उन्हीं फ्रेश फेसेस को एक और बार आपके सामने लाने वाले हैं आज, लेकिन उनका हाथ थामे हैं one of the most legendary artists ever. Please give it up for Gulzar Sahab. Thank you. जावेद साहब भी है यहाँ पर, और मेरी ये खुशकिस्मती है कि आप दोनों को एक ही रूम में मैं देख रही हूँ आज पहली बार. उन्होंने एक कहानी आपके बारे में बताई कि आप जैसा मेमोरी किसी के पास नहीं है. जावेद अख्तर हमारे साथ है. प्लीज गिव मी अ ह्यूज हैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन. Tanvi Azmi ji, you've joined us today. It's a very special and a personal film for you too. Thank you for joining us today. A big hand for her as well. Thank you.
शबाना जी हमारे साथ हैं. A big hand for her. शबाना आजमी, ladies and gentlemen. श्रीदेवी जी हमारे साथ हैं. श्री जी नमस्ते, वेलकम. सौख्यमा. बोनी साहब हमारे साथ हैं. बोनी जी, a warm welcome to you from all of us. And of course, my Jhakas co-star, my co-RJ Anil Kapoor is here. A big hand! And of course, the lovely sister today, the doting sister, if I may, Sonam Kapoor is here joining us today, ladies and gentlemen. बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे इंट्रोस कराने हैं, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज इंट्रोड्यूस यू. एक डायरेक्टर का दिल तब धड़कता है जब ये आवाज़ जो है बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर पहली बार ये स्क्रीन पर दिखती है. एंड द जेंटलमैन बिहाइंड द बैकग्राउंड स्कोर आर Tubby and Parik. Can I please request you to give them equal amount of love, please? Thank you. So, कुछ 36 साल पहले, around 36 years ago, I was in college and there was a cultural festival. वहाँ पे मैंने मिर्ज़ा साहिबा का play, I knew it, you can't shoot me. So I saw the play for the first time, 36 years ago. And college का ज़माना था, love story थी, legendary love story. And at the end of the play, the director comes on stage and asks all of us like this, कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? It was quite a question. Everybody raised their hands. I didn't have the courage to raise my hand. And that question got me. Why do we hurt them the most, whom we love the most? हम उसी को क्यों सबसे ज़्यादा सताते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं? ऐसा होता क्यों है प्यार में? What is this love? It's so illogical. तो ये सारे सवाल घूमते रहे. साहिबा and Mirza, for I'm assuming everybody knows the story, but for those who don't, they were soulmates from their childhood. They grew up and then they found themselves on opposite sides in warring families, thirsty for each other's blood. But they were in love. Their souls could not be disconnected. Everybody tried so, but it didn't happen. And when the time came, they ran away from the world. They galloped on their horse, a beautiful black horse called Bucky. 3 days, 4 nights, finally there was safety. एक और वैली की बात थी, बस उसको क्रॉस करना था उनको, बट अंधेरा हो चला था. They took rest under a tree and they fell asleep. But what they didn't know and what they were fearing the most, there was a posse of Sahiba's brother and some 100 horses looking for them. उनके खून के प्यासे, उनके पीछे. In the morning, Bucky shouted a warning signal. She went up in the sky and warned her master, Mirzia, to wake up. Mirzia woke up and the brothers had surrounded. There were 100 horses, 100 bows and arrows. He went for his bow. He picked up the arrows, but the arrows were broken. All the arrows were broken. And he looked at Sahiba and he said, why? Why did you do it? And then the brothers of the Sahiba's brothers shot the arrows. Mirza, he bled to death. And he had that question in his eyes. And I had this question in my heart for 35 years. Somewhere deep down, it was there. Life is funny. You find yourself in a director's chair and then you want to tell stories. Where do you get stories out of? You get them out of your own experiences. So I called up Gulzar Bhai and I said, Gulzar Bhai, chai.
He said, "aa jao." He's my neighbor. I went to his house and I said, "Gulzar bhai, साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे?" So he says, "बच्चू," he calls me बच्चू. "बच्चू, वो तो तुम साहिबा से जाके पूछो." मैंने कहा, "सर मिल नहीं रही है, बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ." He said, "अच्छा ठीक है, चलो हाथ पकड़ते हैं, ढूंढते हैं साहिबा को, जब मिल जाएगी उसी से पूछ लेंगे तुमने तीर क्यों तोड़े." Ladies and gentlemen, my life comes a full circle to take the writing of such a legend and make it my own. Gulzar bhai. Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आप सबको। और कम होता है कि ईद पर इस तरह का तोहफा मिले जो राकेश आज दे रहे हैं हम सबको। राकेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक अगेन। मिर्ज़ा करते हुए ये जो सवाल साहिबा के बारे में बोल के गए हैं राकेश, तो वो सवाल उन्होंने मुझसे भी पूछा था, मुझसे ही पूछा था बल्कि आगे के, बताइए कि उसने तीर क्यों तोड़े। अब मैं इतना ही कह सकता था कि मैंने साहिबा से पूछा नहीं, पूछ लेता तो बता देती या आप उनसे पूछिए। तो वो जिम्मेवारी उन्होंने मुझ पे दी कि आप पूछ के बताइए। सो आई सेड लेट्स गो, चलो साहिबा से मिलते हैं चल के। तो साहिबा से पूछेंगे। राकेश के साथ ये फिल्म करते हुए ये सफ़र में बड़ा मज़ा आया है, बहुत खूबसूरत है। और सिर्फ यही है कि वो अक्सर टेक्स्ट बुक से बाहर के सवाल पूछ लिया करते हैं और तब बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं अब ये कि स्कूल से ये तो मुसीबत थी मेरे लिए, इम्तिहान देते हुए बड़ा डरता था कि भाई हाँ आपने जो सिखाया वो पूछ लीजिए, उसका जवाब दे दूंगा, जो टेक्स्ट बुक में है वो पूछ लीजिए, ज्योग्राफिया पूछ लीजिए, हिस्ट्री पूछ लीजिए, मैथ्स मत पूछिए क्योंकि वो मैं बहुत ही ख़राब था। पहाड़े सुना दूंगा 1 से लेके 2 से लेके 6 तक 10 तक, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में नहीं है उसके बाहर पूछेंगे तो क्या होगा। और उनके साथ स्क्रिप्ट करते हुए वो मज़ा वही था कि जो टेक्स्ट बुक से बाहर वो सवाल पूछते थे उनके जवाब ढूंढने पड़ते थे वाकई। और इस जवाब की तलाश में मैंने एक सफ़र किया लंबा, जाके मिला, साहिबा से मिला। साहिबा ने वही बात कही जो राकेश पहले ही कह चुके थे कि इसमें अब इश्क में तो ये होता है और ऐसा ही होता है कि चोट कहीं लगती है जाकर और ज़ख्म कहीं पर होता है इश्क में ऐसा होता है। तो साहिबा की कहानी में सोचा अगर मैं कहूँ तो इश्क के एक पहलू की कहानी तो मिल जाएगी। तो जावेद साहब मैं वो ज़रा सी वो कहानी सुना दूँ, इजाज़त हो तो। अब उस वक्त ये शक्ल गाने में नहीं थी, मैंने तो सीन की सूरत में ही लिख के दिया था कि एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी। अब जाहिर है कि नदी के दोनों किनारे भी ज़रूरी हैं, लेकिन उसको अगर एक इंडिविजुअल मान लिया जाए तो 2 किनारे 2 शख्स हो जाते हैं, 2 शख्सियतें हो जाती हैं, या 2 इमोशन या 2 जज्बे हो जाते हैं, और वहीं से वो कहानी का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी। एक नदी थी करवट ले तो सारी जमीन बह जाती, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती। हाँ एक नदी थी, आजाद थी जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी।
अब ये कहानी है उसकी साहिबा की। हम श्योर कि ख़ास तौर पे हमारे तीनों अदाकारों को ये बात समझ में आ गई और कहाँ से। एंड थैंक यू अनिल फॉर गिविंग अस सच अ स्टार एंड लवली ग्रेट एक्टर हर्षवर्धन कपूर। बहुत खूबसूरत एंड व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय हिम। एंड ऑफ कोर्स किसी की भी परफॉर्मेंस कम नहीं है। तन्वी जी से कहूँ मैं कि आप पूरी फैमिली के साथ काम किया हुआ, राइट फ्रॉम उषा किरण जी व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट इन काबुलीवाला, और फिर आपके साथ, और अब साहबजादी आपकी, उसके साथ काम किया। तो इसी कहानी में से ही ये किरदार निकले हैं और मिले हैं मुझे। एक नदी थी तोड़ती तो सैलाब, एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी ज़मीन बह जाती। एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी, आज़ाद थी जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी, लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था, लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था, वो उसकी जंजीरों में रहती थी। एक नदी थी दोनों किनारे थाम के बहती थी। आगे कहानी आपको सुनाएंगे। शुक्रिया। बहुत कहते हैं कि जब किसी की याद आती है तो हिचकी आती है, लेकिन जब गुलजार साहब को हिचकी आती है तो वो कैसे सुनाई देती है। उन्हीं की लिखी हुई अगली इस नज़्म या यहाँ पर गाने की ओर चलेंगे। I'd like to request all of you once again to welcome him back on the stage, ladies and gentlemen, Gulzar Sahab. Thank you. जी साहब, मुझे अंदर हिचकी आ रही थी कि आप याद कर रहे हैं, और हिचकी बस यही है कि कोई याद करे तो हिचकी आती है, कभी कभी बड़े ज़ोर से आती है। और मुझे जब पीछे हिचकी आ रही थी, वहाँ बैठा हुआ था अभी, तो राकेश ने कहा कि एक गिलास पानी दे दिए। तो मैंने बताया, मैं कहा ये हिचकी से एक गिलास पानी से नहीं उतरने वाली है। अब जब तक मैं किसी के गले ही ना मिल लूँ तो कहाँ से हिचकी आएगी। वो तो हिचकी तो तभी ख़त्म होगी जब जो याद कर रहे हैं उनके गले लगे। ये एक ऐसी ही जगह है इस कहानी में भी कि जहाँ किसी को हिचकी आती है, लेकिन उस हिचकी का जिक्र गांव के लोग करते हैं। वहाँ एक लोहारों की गली है, एक लोहारों की गली है जो दास्तानें सुनाया करती है। इस फॉर्म में, इस कहानी में, स्क्रीन प्ले में एक मेरा ख्याल है वो एक अंदाज नया है। देखिएगा कि वो गली जहाँ लोहार काम करते हैं सारे, हर वक्त दहकती रहती है वो, और एक लाल सुर्ख माहौल रहता है वहाँ। और जब आग में लोहा तपता है और जब आग बिखरती है तो ऐसे ही लगता है। उन तमाम लोगों के होते हुए जब वो गाते रहते हैं और कहानियाँ सुनाते रहते हैं, जो मिर्ज़ा साहिबा की कहानी भी सुना रहे हैं, और उस वक्त लग रहा था कि जैसे वक्त ने मुट्ठी खोली है और ये लम्हों की चिंगारियाँ हैं जो बहती रहती हैं और जो चलती रहती हैं, और उनमें वो कहानी कहते हैं। और उसी में बस ये हिचकी लोहारों की गली के किरदार हैं जो बार बार सामने आते हैं और कहानियाँ गाते हुए, कहानी सुनाते हुए आगे चलते हैं। उसमें जिस हिचकी का जिक्र ये लोग करते हैं कहानी सुनाते हुए, वो कुछ ऐसी है, और वो फोक है, वहाँ का लोक गीत का जो रंग है कि आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी, निद्रा में किसने याद कियो रे, जगाए सारी रहना रे। अब नींद में भी हिचकी आई है। निद्रा में किसने याद कियो रे, जगाए सारी रहना रे, पिया जगावे
जिया जगावे और दिया जलावे रे, जो चीज़ें जगाए रखती हैं। पिया जगावे, जिया जगावे, दिया जगावे रे, आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी, संदेशा आयो ना चिट्ठियाँ भेजाई, संदेशा आयो ना चिट्ठियाँ भेजाई, सावन में सूखे नैना रे। सूखा क्या क्या, सावन में सूखे नैना रे, तलैया सूखी कीकर सूखा, भीतर सूखा रे, तलैया सूखी कीकर सूखा, भीतर सूखा रे, आवे रे हिचकी, आवे रे हिचकी। अब ये बोल सूखे सूखे से ही बोल हैं, सूखी सूखी चीज़ें, लेकिन किसी जादूगर के हाथ में, किसी मदारी जैसे जादूगर के, जिसके पास एक गिटार भी हो, जिसके पास म्यूजिक हो, और ज़रा डुगडुगी बजाइए तो देखिए कि इसकी आवाज़ किस तरह से आती है। Can this story reverberate? Can the echo of the same story be heard in today's time? Can it play out in modern day India? Can it play out in 2016? He had a twinkle in his eyes, and 3 months later, it played out in modern India. सवाल ये था, क्या आज के ज़माने में भी वैसा प्यार होता है जैसा हमने सुना था, सोचा करते थे? क्या आज के ज़माने में भी लैला मजनू, रोमियो जूलियट, शीरी फराद, हीर रांझा होते हैं? क्या आज भी वही प्यार का एहसास है? क्या आज भी अगर हम ढूंढने निकलें तो हमें मिर्ज़ा और साहिबा मिलेंगे? आकाश के पार अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं। 3 गवाह है इश्क के, एक रब, एक तू और एक मैं। Give it up once again for Harshvardhan Kapoor, guys. Come on. And the beautiful Sayami Kher, please. आपके बारे में पता नहीं. I've been to many of these launches, tamjhams, but I must say one thing. This launch has been like no other before. And I hope you'll agree with me. If you do, please give this a huge hand once again. Thank you. I mean, ये तरीका होता है, गानों की कहानी है, गानों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आज के दिन. और अगला गाना, and Rakesh ji said, I want you to actually introduce this song because it's a bit of a radio experience. Radio partners, of course, Fever 104. We've been blasting the songs and we can't wait to play the next one. But लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी. I know you're all media people और मैं जानती हूँ कि digitally आपको बहुत कुछ करना है. But सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए, I'd like you to close your eyes. Okay, just close your eyes because this song needs to be felt. इसका नाम है होता है और इस गाने को सुनकर आप बताइए आपके दिल में क्या होता है. I give you होता है, ladies and gentlemen. Thank you. इस मंच पर बुलाना चाहूंगी पहले तो of course विनोद भानुशाली साहब from T Series. Thank you so much. Could you please join us on the stage? Thank you. Secondly, I'd like to call upon Bharti ji. Bharti ji, of course, the producer of the film. And of course, the editor of Mirzia as well. Bharti, could I please have you to share the stage with us? How are you, sir? And my favorite producer, the man who produced the wonderful man on the screen, Anil Kapoor! Please! मैं थोड़ी ना आपको छोड़ूंगी. Come on. You have to join us on the stage. Ladies and gentlemen, please give him a big hand. Jagas Anil Kapoor! Okay, we have to ask all three of you questions. So I'm going to ask you to kindly join me on the stage. Vinodji, please. A few words on the music of Mirzia. Thank you so much, Gulzar Saab, for wonderful lyrics. And
From T-Series, I would just say one thing that today in this hall, some 500 or 1,000 people have heard the songs. Tomorrow the world will hear the same, and it's a super hit. Thank you. Thank you, Vinod Banushali sir, of course, representing T-Series. Bharti ji, I'd like you to say a few words, please. I would just like to say thank you to everybody and thank you to Anil sir. He's been a pillar of strength for the whole unit and I think you should hear more from him. Thank you so much. AK? AK? Yeah, let's hear it for them, guys, come on. ये तो मुझे फंसा दिया है नहीं आज आप रो नहीं सकते हाँ जी? आईफा में जब पहला आपने फर्स्ट लुक किया था it was a very emotional moment at आईफा all the way in Madrid. नहीं आईफा में तो बिल्कुल नहीं रोया था मैं अरे lying नहीं एब्सोल्युटली नहीं बिल्कुल नहीं well of course well I think life has come full circle for me my father came a few decades back to this Mumbai film industry, and he saw success, he saw a lot of disappointments, but that gave me strength, me and my brother. So I want to thank my father, my mother who's here, my brother, both my brothers. And of course, I don't want to say much about myself. It's a very joyous moment for me today. It's great pride that today my son Harsh Vardhan Kapoor, is over here. All I can say is, beta ho to aisa, magar I just want to say, meri baat nahi sunta. He just doesn't listen to me at all. And I know people are very, very apprehensive about Star Sons, but I can assure you, Harsh, and all of you, star children who are, they don't have to be apprehensive, especially Harsh, because whatever he's done today, he's done it on his own. He's got this film on his own. Absolutely. And he believes he's different, but don't expect anything like me from him. Absolutely, I'm telling you. And that's what his strength is. And I just want to thank, that Rakesh, Om Prakash Mehra, spotted him, groomed him, and the entire team, have made him Mirzya today. And I can see Mirzya on screen today. I just want to say that all of you here, friends from the media, my colleagues, my family, Javed Saab, Gulzar Saab, Diler Saab, Shankar, absolutely phenomenal talents, and all of you all have given me so much of support and love. Mera hak banta hai. The entire family has given blood, sweat to this business, never compromised, never made no scams, never made money, just made enough money, but gave everything to this show business, to this film industry. So whatever love and affection you all have given me for so many years, I want you all to give it to my son. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Gulzar. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Kapoor. A very emotional moment. Please take a seat. Thank you, Bharti. Thank you so much, Vinodji. Thank you so much for joining us. Could I, at this point, please request the cast, after which we will have the press conference. So in case you want to realign yourselves, please do that. It's been a very emotional day. As I said, apni picture hai, ghar ki picture hai. Ladies and gentlemen, I give you the cast and crew of Mirzya.
I'd like to open the floor for questions, but I'd like to request our friends from the media to kindly settle down. And now that you have settled down, thank you. Would you please ask your questions? You can raise your hands, a mic will come to you, and that's how we'll do this. We'll start, of course, with the wonderful lady in the white, in the second row with the white bindi. You look wonderful, ma'am. And I'm sure you have a good question as well. check. All right, our first question. Please make sure you tell us who you're asking the question to. राकेश जी आपसे सवाल यहाँ यहाँ है राकेश जी। रंग दे बसंती के बाद आपने दोबारा इस तरह से एक अतीत की बहुत खूबसूरत सी कहानी को वर्तमान के साथ जोड़ा है। ऐसा करते हुए एडिटिंग टेबल पे आपको खुद से लड़ाई करनी पड़ती है क्या? ये सवाल एक्चुअली काफ़ी है या आजकल जो
आजकल का जो सिनेमा है और उसका जो ग्रामर है, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बता दूं अगर 2 मिनट हैं तो। जी। क्या है, कैमरा फोटोग्राफी से आया है, एक्टिंग थिएटर से आया है, राइटिंग तो राइटिंग से है, संगीत की दुनिया से है, क्लासिकल फोक एंड ऑल दैट। एक एडिटिंग ही ऐसा आर्ट फॉर्म है सिनेमा जो सिर्फ सिनेमा की वजह से आया। ये सिर्फ 100 साल पुराना है और ये दिस इज़ द मोस्ट कहते हैं ना द बेबी आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। हम सब मिलके बनाते हैं, कोलैबोरेटिव आर्ट। तो एडिटिंग अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आजकल सब डिजिटल हो गया है, तो हम स्टोरी को नॉन लीनियर भी बोल पा रहे हैं। मतलब पहले बिगनिंग से शुरू करते थे, 1 2 3 4 से 10 तक जाते थे, अब 2 से 12 12 से ये। एट द सेम टाइम हम आपके ख्यालों में भी घुस सकते हैं कि बाजे वक्त आप ट्रेन में बैठी हैं बट आपको याद अपने बचपन की आ रही है, तो वी कैन आगे पीछे वो दोनों स्टोरियाँ चला सकते हैं। तो बहुत सिनेमा के जगत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ये सिर्फ 100 साल पुराना आर्ट फॉर्म है। आगे चलेंगे तो अभी वर्चुअल और ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी और ये सब आने वाला है। एडिटिंग तो फिर पीछे रह जाएगी। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2 कहानियाँ और बहुत खूबसूरत कहानियाँ, उन्हें जोड़ते वक्त आपको बहुत खूबसूरत से जो दृश्य आपने या गुलजार साहब ने लिखे होंगे वो काटने पड़ते होंगे, तो उस वक्त आपका अपने से ही एक वो होता होगा, द्वंद्व होता है कि ये चीज़, क्या चीज़ रखूं और क्या चीज़ छोड़ूं, खासतौर पे जब गुलजार जी हो तो। या मतलब इतनी प्यारी स्क्रिप्ट हो, फिर उसको आप सब लोग मेहनत से काम करते हैं और उसको शूटिंग करते हैं और बहुत मटेरियल होता है हमारे पास। और बट एंड में जो कहते हैं कि फिल्म टेबल पे बनती है, एक फिल्म का स्क्रीन प्ले कभी ख़त्म नहीं होता। एक लिखा जाता है, एक शूट किया जाता है, फिर एक्टर्स उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, डायरेक्टर अपनी तरह से, म्यूज़िक डायरेक्टर्स अपनी तरह से, कैमरामैन, फिर एडिटर के पास जब वो पहुंचती है बात तो वो अपनी तरीके से इंटरप्रेट करती हैं उन्हें और फिर वो उस कहानी को वैसे बताते हैं। तो स्क्रीन प्ले बार बार लिखा जाता है और जब ऑडियंस देखती है, हर एक ऑडियंस का मेंबर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। Thank you for your question. Hi, this is on your right, Rakesh ji, Sohail from Glamsham. Congratulations to the entire team and it was a great launch. मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि मिर्ज़ा और साहिबा की जो कहानी है पहले की और आपने आज उनको रिलेट करने की कोशिश की, हर्षवर्धन को आपने ऐसे नहीं सोचा कि उनके फिजिक पे थोड़ा वर्क कर दिया जाए, मतलब यू नो विद हैविंग सम मसल्स आल्सो, दैट थॉट हैड कम इन योर माइंड? कुड यू टॉक? एंड हर्ष आल्सो, हर्ष से हम पूछना चाहेंगे कि वो अपने डैड की तरह ही यू नो लाइक ही आल्सो हैज मेंटेन्ड हिमसेल्फ राइट फ्रॉम Sohail, जी। okay, the character of this film, I think we've got too used to these 6 packs these days. Number 1, no, ये भेड़चाल जो है. Number 2, Mirza's character was not that of a boxer. Neither. So Harsh has given me 18 months. Now hear me out. Since we are talking about prep, 18 months before the shooting. Don't get me wrong. In that he has worked on the role of first the contemporary character, which is Munish in the film. So for them, in their first film, they are actually doing double roles in their first debut films. And that character required a certain physicality. Correct? Then after finishing that, we took a 7th-month break because they had to prepare in a different way for another film within a film for another character to be in a different zone altogether. It's not easy, and in your first film. For 6 months they prepared again. There is something called horse riding and mounted archery. If you study that, when you are a horse rider, you got a very lean and athletic look about you. You don't have a 6-pack look about you and all that. So I'm sure when we make a movie about a boxer, we'll satisfy you. हर्षवर्धन, यहाँ मेरा सवाल आपसे है, जब आपने पहली बार ये स्क्रिप्ट सुनी, आपका रिएक्शन क्या था? Well, first of all, we actually met in 2008, I think, and we kept meeting every couple of months after that. And at the time, Rakesh sir had mentioned that he was working on the story of Mirza Sahiba
and Gulzar Saab was writing the screenplay. And I was actually still in college at that time. I was 18, 19 years old. I'm 25 now, so this is a conversation that's been going on for a very long time. And then I went back to college after the first interaction with Rakesh sir, and I actually did what I could, try to find whatever I could about the story on the internet. And obviously it's a romantic tragedy, and it's very different from the other romantic tragedies because it's the two lovers themselves that make decisions that eventually determine their destiny. So it was very complex, and it was very brief and very vague on social media. So as kind of time went on, we kept reconnecting, and then eventually, I think in June 2013, after talking for like 2 or 3 years, we finally decided that it was the right time to kind of embark on this journey. And until then, I hadn't really heard anything from the script. So then finally I sat with Mehra, and then he narrated about 10 or 15 pages because the script was still a work in progress at that time. And just the beauty that which it was kind of written, because it's very rare these days to find scripts that are very poetic and very romantic. And I think for me, I read it when I was 22, and I was reading so many other romantic stories and scripts, but I think that this is the most contemporary romantic film ever. I mean, at least from what I've read, the interpretation of it. So I was completely blown away. It's one of those things that you hear it and you're like, I'll give anything to be a part of this film. I mean, it's romantic, it's complex. You get to play 2 characters. It's poetic, it's visual, it's musical. So it's like a fever dream. So it's a dream. कितना डिफिकल्ट था आपके लिए इस कैरेक्टर को निभाना? तो एक्चुअली 2 किरदार है, एक है आदिल का और एक है मिर्ज़ा का. तो फर्स्ट वी वर्कड ऑन आदिल अ लॉट. Actually, we worked on both simultaneously, and when I heard the story, I knew that the whole film depends on my ability as a rider and an archer, because Mirza is the best, and I'd never been on a horse, so it sounds very easy, but actually when you start doing it, and then you know the script, so you know how sir is going to shoot it. It's not like other films where you're cut to your close up and then you cut to the stunt double. It's not one of those films. I knew the level that I had to kind of reach to, and I moved away to Delhi for 6 months first, because Bombay doesn't have too many places where you can learn that skill. So I learned the basics there for 6 months, and I had a lot of falls. Then I came back, then we continued, and I mean, it's a 20-minute answer. I can't really sum it up for you, but it was basically very difficult. Thank you, Harsh. Thank you so much. Is there a question for Sayami? Is there a question for Sayami? Yes, ma'am, in the blue. Go for it. Hi, Sayami. Hi, namaste. Namaste. You both looking very stunning. Thank you so much. My question is for you and Harshvardhan both. As we just heard, Anilji said कि Kapoor Parivar has given a greatest contribution to the films, and so is you. Thank you. Your family is also very much connected and given a lot of contribution industry. आप दोनों कितना प्रेशर महसूस करते हैं इस वक्त? फिल्म रिलीज पर है और बहुत ज़्यादा लोग आपसे उम्मीदें रखे हुए हैं. मैम, प्रेशर तो मतलब I hope, at least I'll speak for myself. If I kind of have 5% of the genes that my grandmother or my aunt has, तो ऐसे लगेगा कि थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, बट प्रेशर नहीं है क्योंकि दोनों हर्ष ने और मैंने वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट, एंड व्हेन वी हैव गाइडेंस लाइक राकेश सर एंड गुलजार साहब, इट मेक्स लाइफ मच ईजियर. सो वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट एंड वी होप पीपल लाइक इट. मेरा सवाल हर्ष ऑन योर लेफ्ट. हर्ष, अभी आपको जवाब देना बाकी है. कौन से क्वेश्चन का? Do you feel the pressure? Yeah, no, I think, I think when you kind of believe in something so much and you work for so long with so much honesty, and, you basically leave behind your life and you sacrifice so much. Eventually, when you're performing,
with that honesty in your heart and your mind, the audience can feel it in when they watch it, and that's all you can really do. So I don't think it's very intelligent to feel creative pressure in terms of commercial expectations because you're somebody's son and all of that stuff. I feel there's nothing I can do about that. So whatever has to happen will happen. मेरा सवाल गुलजार साहब से है. गुलजार साहब. Okay, we'll take that question. गुलजार साहब के लिए एक सवाल है. गुलजार साहब इधर देखिएगा. On our left. Okay. सर देख लिया आप. हाँ, गुलजार साहब आपने धुनों पर बहुत बेहतरीन गाने लिखे हैं. बहुत सारे ऐसे नगमे लिखे हैं जो पहले लिखे गए बाद में धुन बनाई गई. इसमें मिर्जिया में आपने क्या अनुभव रहे? आपने किस तरह से आपकी रचना प्रक्रिया रही है? मिर्जिया में कहानी ने खुद ही गीत लिखवा लिए मुझसे. जो कहानी थी और जो किरदार थे, जो कैरेक्टर थे, जब उनको बयान कर रहे थे तो उसमें एक फोकलोर की फील थी, एक फोकलोर का अंदाज था. तो वो उस कहानी के साथ अपने आप जब उसकी ज़बान बन जाती है, गीतों की भी, जो कहानी की ज़बान हो. और एक तो ये कि स्क्रिप्ट के साथ बहुत कुछ लिखा गया और मेरा ख्याल है पहली बार ये मैंने इतना ज़्यादा बोझ उठा के इतने बड़ी उलझन में शंकर को डाल दिया था कि अब इसके ऊपर आप धुन बनाइए, मैं हमेशा आपकी धुन पर लिखता रहा हूँ, अब आप इसका देखें क्या करते हैं. और उनका ये है कि मैं जैसे उस वक्त बात करते हुए भी मैं कहा कि ये भरे हुए हैं पूरे मेलोडी से, इनको ज़रा सा हिला दो तो मेलोडी निकलने लगती है और बाहर आने लगती है. और बस वो उसके बाद मैं ओक सामने रख लेता हूँ जमा करने के लिए. और कहीं कहीं उन्हें ये कि अल्फाज दिए, उन्होंने धुन भी बना ली, वहीं की वहीं बना ली और उसके आगे की धुन बना ली, उससे अंतरे बना लिए. तो फिर देन यू हैव टू फॉलो इट. इट्स अ 2-way जर्नी. और वो अगर आपने थोड़ा रियाज किया हो पिछले सालों में तो फिर आप शंकर के साथ काम कर सकते हैं. क्या बात है. शंकर साहब आपसे सवाल है. on your left, Harshvardhan. शंकर सवाल है. Sorry, could I please complete the answer? गुलजार साहब से आप काम कर चुके हैं, पहले भी कर किया आपने. नित नए गुलजार, क्या अनुभव रहा आपका काम करने का? मैं ये कहूँगा कि वो हमेशा ही नया गुलजार हैं हमारे लिए. एवरी डे इज अ न्यू एक्सपीरियंस, एवरी डे इज अ न्यू सरप्राइज एंड कुछ ना कुछ हम लोग रोज सीखते हैं इनसे. तो इट्स बिन मैं क्या बताऊं कि ऑल आई कैन से इज हम लोग सब बहुत अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि वी आर इन एन इरा वेयर वी आर एबल टू वर्क with a maestro like Gulzar Saab. क्या बात है. Thank you so much, Shankar sir. Sorry, before the next question, I must say, these are begging for my attention. Daler Baji, you're a legend. You're back on the scene right now. जोरदार तालियां दलेर मेहंदी के लिए, please. But साथ please एक फोटो इनके जूतों के साथ मेरी ले लीजिए, मेरे दोस्त हैं मीडिया वाले. Dude, look at that bling! I love it. Could I please ask you a question because I would like to? All right. Could I please pass the mic to Daler साहब? Thank you. आपकी आवाज़ सुनकर सच कहूँ आंसू आ गए. आपको आज के इस परफॉर्मेंस के बाद अपनी ऑडियंस से, जो आपके फैंस हैं, अपने मीडिया के भाई आपके मैसेज लेके जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राकेश मेहरा जी का कि जो ये बिलीव रखते हैं, प्यार करते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं. तो काफ़ी सालों से 5-6 सालों से बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, अपने शोज़ कर रहा था, म्यूज़िक काम करता हूँ, सालों साल बिज़ी हैं. पर फिल्मों में आप खुद ही जानते कोई गाना नहीं आ रहा था, ना ही मैं गा पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा था उससे मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि किस तरीके का ये दौर शुरू हो गया है, कैसे गाने शुरू हो गए हैं. तो जब मुझे बुलाया गया मिर्ज़ा के लिए और मैं मुंबई आया और मुंबई आकर स्टूडियो में शंकर एहसान लोई साहब, गुलजार साहब बैठे हुए थे और पहुंचा जी, हाँ जी मुझे क्या गाना है. तो मुझे शंकर जी ने कहा कि आपने स्टोरी को, ये एक हो रही है और आपने स्टोरी लाहौरों की बस्ती है, इस तरह आपने बताना है स्टोरी को. तो मैं 15-20 मिनट बहुत ही
सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह बोलूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो गाने के लिए तो है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जैसे ओम पुरी साहब, गुलजार साहब की आवाज़ है। लगता है कि फ़रिश्ते बोल रहे हैं, बहुत कमाल। तो मुझे लगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, और फिर मैं सोचा कि अब थोड़ी देर और बिताया, तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये आप फिर साईं जहूर जी की बहुत अच्छी आवाज़ जो शुरुआत वो करते हैं मिर्ज़िया में, बहुत सूफ़ी फ़कीर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका सूफ़ी में, तो उनकी आवाज़ सुनाई। फिर कहा कि इसमें आप ये 2 लाइनें ऐसे ऐसे आप गा दीजिए, वादियाँ दूदियाँ कोहरे की। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तब मैंने रिदम वगैरह बिल्कुल नहीं सुनी थी कि कैसी रिदम में क्या है, और वो मैंने गाना गाया। फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मुझे लगा, मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मिर्ज़िया अगर हो तो वो कैसा हो, कैसी उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए, किस तरह उसे बुलाया जा सकता है। तो मैंने फिर गुजारिश की गुलजार साहब को, राकेश जी को, शंकर जी को कि मैं एक लाइन मिर्ज़ा साहब अगर गाना चाहता हूँ तो अगर आप बोलें तो बहुत बड़ी दरिया दिली है, क्योंकि इतने बड़े कलाकार हैं, उनके सामने कुछ कहना बहुत छोटी बात हो जाती है। और मैंने कहा जी ठीक है आप कीजिए। तब रब जानता है कि मुझे लगता है कि ये हर्षवर्धन जी, श्यामी जी, इनकी तकदीरों की वजह से ये सारे हम लोग जुड़े हैं, और इनकी तकदीरों की वजह से एक इतना बड़ा काम है। क्योंकि मिर्ज़ा साहिबा जी मिर्ज़ा साहिबा बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत हम भी बचपन से सुनते हैं यहाँ पे आप सब ने, लेकिन इसे बोलना, इसे कहना और इसे गाना अगर रब की मेहर हो तभी हो सकता है। कि ये बहुत बड़े और सच्चे आशिक हुए हैं, हीर रांझा, सोनी माहीवाल, तो इनके ऊपर गाना। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप गाइए। तो फिर एक ही बार में माइक के सामने मैं खड़ा हुआ, और जो मेरे दिल से आवाज़ आई बिना सोचे समझे, ओ और उस चीज को 4 चांद लगा दिए शंकर एहसान जी की टीम ने। गुलजार साहब के बोल हैं और राकेश जी के। तो मैंने तो बहुत एक ही लाइन छोटी सी गाने की कोशिश की और रब ने गवाई। फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आज जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो एक रुख है, दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, म्यूज़िक है वो मिर्ज़ा की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया और बहुत साफ़ सुथरा और खूबसूरत प्योर इंडियन, ये जो गाना आप सुनेंगे ये प्योर इंडियन म्यूज़िक है। ये वादियाँ दूदियाँ कोहरे की, ये जो गाना पूरा चल रहा है इसमें कहीं भी आपको वेस्टर्न या कहीं से यहाँ से म्यूज़िक चुराया वहाँ से चुराया बिल्कुल नहीं। एक इंडिया की रूह है, प्योर इंडिया का म्यूज़िक है और पहला म्यूज़िक है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और मीडिया का भी और जितने भी फैंस हैं जिन्होंने सर आँखों पे बैठा लिया। और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप इन दोनों स्टारों को, हमें, हम सबको ब्लेसिंग दीजिए कि और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू। My favorite man. All right, thank you. On your left, Next. Arsh on your left. This is Simran Singh from Book My Show. First of all, congratulations to you and your team for the fantastic, mind-blowing film. Thank you very much. My question to you is, your dad just said that you are very different from him. So how much do you agree on that? Is it true that you are different from him, or what do you want to say about it? I don't think I'm the best person to decide that. You know, it's very difficult to have an opinion about yourself. But I think the only way you can define, I mean, at least in my situation, is define my own personality is by the characters I decide to take up. Or actually, I get lucky enough to play, and that is something that will happen over time. So, you know, I think that's a question that will be answered over time. You know, if as and when people get to see my films and stuff like that. Hi Harsh and Sayami, over here straight. Gulzar Sahab, straight towards straight. My over here. My question to you is, you know, stars like Amir Khan, Amitabh Bachchan, Salman Khan have tweeted about your film, the trailer of your film. So how do you feel when stars speak about the film, and how much do you think that helps the film in building up the hype around the film? Both of you. I think at the end of the day, it just comes down to how honest and good the film is. You know, to be honest, and
I mean, there's so many incredible people working on this film. I mean, it's only my first film. I'm an unknown, but there are so many incredible people working on this film, and I think it's because of that. You know, so we're extremely thankful and that they've liked whatever they've seen so far from the film, and then I hope they like the film when they see it. But it's a huge blessing, and it definitely does help. You know, and very grateful for it. गुलजार साहब, प्रशांत पांडे ईटीवी हिंदी और उर्दू की जानिब से, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक लोक कथा, उसमें लोक संगीत और गीत सब कुछ नज़र आ रहा है, एक ऑब्जर्वर के तौर पे कैसे देख रहे हैं कि एक फोक जो है वो अब ग्लोबल हो चला है और बहुत ही रीच उसकी बढ़ रही है, ये जो तब्दीली आई है संगीत में या गीतों में, उसे आप एक ऑब्जर्वर के तौर पे कैसे देखते हैं? मैं समझा नहीं कि उसमें तब्दीली क्या आई। जो आजकल फोक ग्लोबल हो चला है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? लोगों तक पहुंच रहा है फोक गीत संगीत? नहीं, देखिए, फोक की तो एक ट्रेडिशन है, वो किसी का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फोक की साउंड्स और फोक का स्टाइल और फोक जिस तरह से स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें खूबी यही है कि आप हर दफ़ा अपने दौर का, अपने वक्त का नमक लगाकर उसे दोबारा पेश करते हैं, और यही काम शंकर जी ने और शंकर एहसान लॉय तीनों ने किया है कि उसकी साउंड्स मॉडर्न हैं, उसके साउंड्स आज के हैं, उनका स्टाइल भी आज का है, उसके बावजूद आपके दौर का लगता है, बावजूद ये कि कहाँ से एको करता हुआ वो फोक आपके पास आ रहा है। फोक की खूबसूरती है, भाटियाली आप जहाँ जहाँ गाते रहेंगे, जिस दरिया में भी गाते रहेंगे, साउथ में गाएंगे तब भी वही होगा, बंगाल में गाएंगे तब भी हो, लेकिन दोनों जगहों का की अपनी हवा, उसकी हवा का नमक, उसकी हवा का जो जायका है वो उसमें शामिल हो जाता है, और यही खूबी है फोक की कि वो हर जगह अपने आप को लोगों के साथ अडेप्ट कर लेता है। राकेश जी, अगला सवाल आपसे है कि लद्दाख से एक लगाव आपका नज़र आ रहा है एक बार फिर, तो क्या लद्दाख में शूटिंग करते वक्त भी कुछ कहानियाँ या कुछ बातें नज़र आईं? क्या उस जगह में कोई खासियत आपको नज़र आ रही है जो कहानी कहने में और भी आने वाले वक्त में नज़र आएगा? मैं खासकर लद्दाख के बारे में मैं आपसे 2-4 महीने तक बात कर सकता हूँ, और तब बात शुरू होगी। तो मिर्ज़ी और लद्दाख का क्या मेल है? तो जब, जैसे हम बात करते ही आए हैं कि लोक कथा है, फोक टेल है, इट्स अ लेजेंड ऑफ मिर्ज़ा साहिबा which reverberates and echoes and lands in today's time. So the legend, when you tell the story, a movie is a story told in pictures, correct? So I wanted to recreate the folklore of Mirza Sahiba in my imagination, not in a period, not in the past, present or future. It is timeless. The word which I caught him in from his script and what I passed on from him to them was, it's eternal. Ladakh has always given me that feeling. That is eternal, that nothing has touched it. And always, from day one. I was 25 years ago, I first went there for my honeymoon when I discovered it. And since then, I've gone there for 25 years, every year, sometime twice a year. But that's beside the point. It's still, I haven't even explored 10% of that land. And that's why? Because the soul of Mirzia and the soul of Sahiba was somewhere, I found, can be in such a pure place, that is Ladakh. Yeah, hello. My question is Shankar sir. In this movie, there's a lot of folk songs, and you have blended with the modern music. How could you do this and something very different? Gulzar sir also told that you have blended with the modern music. Well, just like how the script is, just like how the characters of the film are, just like there are dimensions, there's so many dimensions in the film, it's dynamic, there are so many emotions in the film. Similarly, our music could not have been just, in one layer. If you hear the title song again and again and again, you'll be discovering new layers every time you see.
Arey, you will see, oh, this voice, oh, that's a new voice. Yeah, this rhythm is coming in here. Suddenly you will see Nuran sisters coming here. So we wanted to give that a sense of, color. If you hear the title song, for example, it's celebration of Mirza. There are so many flavors, there are textures. If you hear them in isolation, you probably might feel that this voice may not go with this voice, or this genre may not go with this genre. But, with whatever you would like to expand on that, we just brought these things together in an interesting way, which is musically and aesthetically of some value. When Rohini said to close our eyes, and I was just gone to trance when the last song was played. Thank you. Thank you. I'll just add to that. I requested Rohini for a very long time in the last 2 decades exactly, it's happened to us. I've grown up in a radio generation where we used to listen to the songs. Song would go through my ears, enter my heart, stay there forever. Now the generation is looking at the song. So last song I requested if we can, everybody can hear it, because the sensory organ which God has created for listening is here, I think. के ठीक सामने सबसे पहले तो आपको विश ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आप वो कौन कौन से एक्टर हैं जिनकी आप फिल्में देखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं? I make it a point to watch all films. I think there's so many amazing actors, and I like certain films from, of certain actors. Amir is a very big influence. I think when, at least my generation was growing up, in 2001, Dil Chahta Hai came, then Lagan came, then Rang De Basandi came, and those were defining films for us when we were growing up. And also at that time, actors were doing so many films at one time, and he decided to work more in isolation and really focus on one thing at a time. And I've been lucky enough, because of the way Mehra sir works, to have that experience on Mirza. And I want to keep having the opportunity to do that with every film if it requires it. But to answer your question, I think Amir for his choices and determination. I think Ranbir for his ability to be spontaneous and his brilliance. Those are the two that come to my mind. हर्षवर्धन जी, आपको नहीं लगता कि आपका कंपटीशन खुद आपके डैडी से होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वो डे बाय डे परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं, वो बूढ़े नहीं हो रहे, हम सभी देख रहे हैं। तालियां अभी स्टेज पे देखा, हम और आप और आपके डैडी भाई भाई लग रहे थे, तो आपको नहीं लगता? All my girlfriends also say the same thing. But no, I think जब आप hopefully जब आप ये फिल्म देखोगे तो पहले 10 मिनट में आप ये सब भूल जाओगे. Well answered, Harsh. Well answered. Is there another question? Gulzar Saab, here, Justin. So, towards your left. Justin? Just in time you are? There you are? So here. Okay. Sir, Mirza marks your return as a screenplay writer after, I think, almost 17 years. Sir, what took you so much time to write for films? क्या पूछा? Sir, Mirza... फिर से पूछिए जरा, आप क्या कितना वक्त लिया या क्या पूछा? सर आप जरा सा खड़े हो जाइए ताकि मैं आपकी सूरत भी तो देखूं ना, ऐसे जरा, हाँ, बड़े खड़े होके बोलिए, जैसे जैसे मास्टर लोग बोलते हैं वैसे बोलिए. Yeah, sir, with Mirza you're coming as a screenplay writer after, I think, almost 17 years. So sir, what took you so much time to write for films, I mean, in that way? मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिली, किसी ने नौकरी दी नहीं उसे. टिल आई मेट राकेश, शुक्र है कि इन्होंने रख लिया मुझे. और नाउ आई डोंट वांट टू लीव हिज टीम. मैंने तो इनसे कहा कि मुझे अडॉप्ट कर लीजिए अब आप. We'll take the last question. Yeah, it's me. गुलजार साहब, जो मैं 35 साल से आपके साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ, और आप प्लीज़ इन पूरे ऑडियंस को और मीडिया को बताइए कि मैं कितने साल से कह रहा हूँ कि मुझे एक फिल्म में ले लीजिए. कितने साल से बोल रहा हूँ आपको मैं? ऑलमोस्ट 32 ईयर्स, 33 ईयर्स, 34 ईयर्स. 34 साल पहले मैं आपके घर आया था
वो 7 दिन बन रही थी, मैं गुलजार साहब के पास गया था और मैंने कहा कि मेरे साथ एक फिल्म बनाई, आज तक नहीं बनाई इन्होंने, इसका जवाब चाहिए मुझे आज। जरूर दूंगा। अच्छा चलो, थैंक यू वेरी मच, एटलीस्ट आपने मेरे बेटे के लिए बना दी। थैंक यू। अच्छा देखिए, कई बार कुछ जवाबदेही सवाल, कुछ पाप, कुछ प्रायश्चित कई जनरेशन तक चलते हैं, है ना? और गवाह आपके सामने बैठे हैं। हर्ष से पूछिए, शाम को मैंने यही बात इनसे कही थी कि वो मुझे मेरी पिटाई करने वाले हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं मेरे साथ काम किया जब मेरे बेटे के साथ कर रहे हो। मैंने शाम को आपसे जिक्र किया तो मैं कहा अनिल आएंगे तो पिटाई करेंगे, अरे उन्होंने कर दी, देख लीजिए सबके सामने। लेकिन सिर्फ यही है कि मैं आप हर्ष को भी यही बता रहा था, मैं कि somehow I kept missing him, कहीं ना कहीं। अब I miss him even now when I don't see him, that missing is separate, लेकिन casting में I kept on missing him because I was never a producer and नौकरी करता था as a director also, तो दूसरों के लिए बनाता था। तो somewhere I kept, बल्कि वो ब्रिम तक पहुंच के भी वो मिस कर गया मैं। I wish you had employed me once. राकेश जी, नहीं, आई जस्ट वांट टू ऐड टू दिस, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस टॉपिक। और मेरे से कई पूछा जाता है ये भी कि आपने सोनम के साथ 2 फिल्में की, अब हर्ष के साथ कर ली, आप अनिल कपूर के साथ कब करेंगे? तो जैसे ही वो 18 साल के हो जाएं एक फिल्म बना लेंगे। आई डोंट वर्क विद माइनर्स, ही हैज टू बी एन एडल्ट फर्स्ट, देन आई विल मेक अ मूवी। राकेश जी, आपने जैसे कहा कि मिर्ज़ा की जो मिर्ज़ा सोहेल अगेन साहिबा जो तीर तोड़ देती है, उसका जवाब आपने कैसे दिया, आई डोंट नो इन द फिल्म। और दूसरी बात है कि वो जवाब मिलने के बाद किसे कास्ट करना, हाउ वाज दैट जर्नी एक्चुअली, नो मतलब to take up fantastic, absolutely amazing, but then you had it in mind कि you wanted a newcomer और हर्ष आपके ध्यान में था पहले है, वो जर्नी के बारे में कुछ बताओगे सर? यू नो, हम लोग सोचते हैं, कई बार सोचते हैं, और ये मेरी 5वीं फिल्म है, ज़्यादा नहीं बनाई मैंने 15 साल में। कई बार सोचते हैं दिस वर्ड कॉल्ड आई डिड दिस, आई रोट दिस, आई डायरेक्टेड इट, आई कास्टेड हिम, I thought of that, this is my tune, all that. Not really. I feel that this is somewhere there is destiny, and somewhere the right thing has to happen if you trust something which is larger than you. So I always trust that. And that might sound like philosophy to you, but on a practical, on a logistical way, I trust my instincts a lot. And that small voice inside you is actually the loudest. Normally we let it drown in this whole confusion around us, a lot of noise. My instincts took me to his door. He lives just 30 meters away from him, but it took me 35 years. My instincts took me to both of them, and destiny brought us together. It was instincts, nothing else. I can give you 101 reasons. I won't be able to sleep tonight by giving those reasons, because I'll feel I haven't told you enough. There is something more. We just didn't make a film together. We spent the last 3 years together. Our life is today less by 3 years since we first met. So there's a lot more than that. I wish I'm able to explain it to you better someday, one of these days, in my office, over coffee, over a drink, whatever. To Gulzar Saab and Rakesh is how has tragedy influenced the greatest of love stories and turned them into epics, whether it's Romeo and Juliet, Heer Ranjha, and now it's Mirza and many more. But do you think tragedy has influenced to make love stories kind of, great, yeah. Great. मुझसे पूछ रहे हैं आप या राकेश जी से? Yeah, both of you, I mean. नहीं, दोनों कैसे जवाब देंगे? Okay, then you please, as a screenplay writer, yeah, you. One at a time. अच्छा, क्या सवाल? Question, please. Has tragedies influenced the greatest of love stories,
whether it is Romeo and So when Juliet. it's a happy ending, नहीं, it's सवाल- not so much fun for हाँ, our नहीं, friend. वो Yeah. सिर्फ यही है कि ये सवाल कई तरह से पूछा जाता है, जो मुझसे भी पूछे गए कि ट्रेजेडीज क्यों है, सारी ट्रेजिक क्यों है वो जो लव स्टोरीज हैं, और या वही क्यों बनाई जाती हैं जो ट्रेजेडी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो उदासी बहुत देर तक सुलगती है, खुशी उतनी देर तक सुलगती नहीं है। खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है, खुशी फुलझड़ी की तरह जलती है और ख़त्म भी हो जाती है, उसकी रौनक भी उतनी ही देर रहती है। लेकिन अगरबत्ती अगर जलाएं तो उसकी खुशबू देखिए कब तक रहती है और सुलगती रहेगी, वो सुलगती रहेगी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ हैप्पी एंडिंग एंड अ सैड एंडिंग। क्या बात है। ये कहानी का जवाब का एक रुख था, मेरा ख्याल है दूसरे रुख के पूछ लीजिए, जवाब देने की ज़रूरत तो नहीं मैं समझता। और वरना ये कि जहाँ हैप्पी एंडिंग में ये भी हुआ कि और उसके बाद आप कहानी में लिखेंगे कि अच्छा फिर उनके 3 बच्चे हुए, फिर क्या करेंगे आप, है ना। लैला मजनू की कहानी ले लीजिए, क्या और फिर 3 बच्चे हुए और उसमें से एक तो ऊँटों का व्यापार करने लगे, एक भाग गया घर से, तो ये लॉस द इंटायर थिंग है ना। वो लैला मजनू की कहानी कहिए ना आगे, उसका एंड बदल के देखिए तो यही होगा। और ये तीसरा भी दुकान पर बैठता है, तो वर्क आउट अ स्टोरी एंड यू विल नो इट फॉर योरसेल्फ कि वो बस अब आप समझ गए कि जो All right, ladies and gentlemen, I'm so sorry. I'm so sorry. One last All the time we have. Okay. लास्ट क्वेश्चन गुलजार जी से करना था जी। Ma'am, I'm so sorry. We've actually run out of time. और बहुत भूख लग रही है हम सबको। जी बस एक सवाल गुलजार जी से करना था। गुलजार जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सभी लिखने पढ़ने से जुड़े हुए लोग हैं और हम प्राउडली बोल सकते हैं कि हम उस देश में लिखते हैं जहाँ गुलजार साहब की लेखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो आप हम लोगों को गाइड कर सके कि आपकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही सादगी में बड़ी बातें बोल जाती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाषा से ज़्यादा भाव की ज़रूरत होती है लिखने के लिए? देखिए, इसमें एक सवाल के अंदर एक सवाल ये है कि बड़ी बात है और सादा ज़बान, दो सवाल में 2 हिस्से हैं कि बड़ी सादा ज़बान और बड़ी बात। सादा ज़बान सिर्फ मैं ये डिफेंड कर सकता हूँ खुद को और कह सकता हूँ कि जो बोलचाल की ज़बान है, जिस ज़बान में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोशिश होती है कि मैं उसी ज़बान में कहूँ जो आप तक पहुँच जाए। और मुझे कोई थ्योरम नहीं बनानी है, कोई स्कॉलरली उसके कि कोई PhD करना है तो मैं बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करूँ। कोशिश यह है कि जिस ज़बान में फ़िल्म लिखी जाती, जिस ज़बान में किरदार बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं, उसी ज़बान में बात की जाए जैसे इस फिल्म के भी है। और ये कि जो ज़बान कम्युनिकेट करती है वो सादा से सादा ज़बान में वो ज़बान है जो हम आपस में बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ज़बान वही रहती है ना। बड़ी बात जो है वो बड़ी बात आपका अंदाज़ा है, मैं बड़ी सोच के नहीं लिखता उसे कि ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं जो बात एक्सपीरियंस है या जिस एक्सपीरियंस से गुज़रता हूँ उसे बड़ी ईमानदारी के साथ वही कहने की कोशिश करता हूँ जो महसूस करता हूँ। अब वो बड़ी है या देर तक रहने वाली है ये तो वक्त बताता है, तो वक्त के साथ ही वक्त इज़ द बेस्ट टेस्ट। तो बस उतनी सी बात है, वो बड़ी है तो शायद आपको बहुत बड़ी लगी हो, अब किसी को बिल्कुल अच्छी ना लगी हो, ये भी होता है। क्या बात है, क्या बात है। और वक्त के साथ ही हमें चलना चाहिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। आई नो यू नीड मोर पिक्चर्स एंड विल ट्राई एंड डू दैट, बट थैंक यू सो मच। और जाने से पहले, before I ask my wonderful cast and crew to take a bow once again as we say bye-bye to you.
Yeah.